अभी एक बंदे को मैं थोड़ा मेंटर कर रहा था, तो ही वाज टेलिंग मी दिस, मैंने उसको एक बात समझाया था बहुत अच्छा, कि वो गालिब का शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाला, तो वो बस आप इंडिकेटर पे डाल दो, हजारों इंडिकेटर ऐसे कि हर एक इंडिकेटर पे दम निकले, बहुत निकले मेरे ट्रेड्स लेकिन फिर भी कम निकले। ऐसा है वो। What I have observed, especially with commodities, is that they work so well compared to the equity market for trend following, because quarterly earnings नहीं है, company announcements नहीं है, कुछ नहीं है। गोल्ड ट्रेड करना है, यूएस मार्केट में गोल्ड ट्रेंड नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, खत्म। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग, क्योंकि कमोडिटीज का टाइमिंग तो मिडनाइट तक चलेगा, तो हर एक बंदा ये कर नहीं सकता। लेकिन व्हेन आई लर्नड Renko and then I tried to model my system, Renko with DC was a very simple system. तो मैंने मेरी तरफ से मेरे डीलर को ये सिखाया कि Renko क्या है, डीसी आइडेंटिफिकेशन कैसा है, रूल्स कैसे है सिस्टम के, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है ये प्लान, मैं उसको देता हूँ, वो बस एग्जीक्यूट करता है मेरे लिए। तो मुझको टर्मिनल के ऊपर होने की जरूरत नहीं है। रात एंट्री इज रिलेटिवली इजी। People think entry is 80% of the trading system. I like to think entry is only 20%. 80% is your holding and exit and pyramiding. Why I am telling you this is there are so many people who come to me. अरे ये अच्छा, ये मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ. Fair enough. What they don't do is optimize the existing setup for their needs. they 3 महीना करते हैं, फिर अलग इंडिकेटर पे चले जाते हैं, वो 3 महीना करते हैं और अलग इंडिकेटर पे चले जाते हैं. That is not a good strategy. हेलो दोस्तों, फाइंडिंग एज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिजीत भाटे से। इनकी जो जर्नी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने पर्सनली विटनेस की है। इज़ अ वंडरफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर। अपनी पूरी जर्नी के साथ जो भी मेथड इतने टाइम में उन्होंने डेवलप किए, जो वो प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से, वो उन्होंने इस पॉडकास्ट में बहुत शुरू से स्टेप वाइज अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप जो भी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको आई एम श्योर ये पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आएगा। ये पूरा मेथड बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और आई एम श्योर आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगेगा। चलिए बात करते हैं उनसे। वेलकम अभिजीत, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और आपने एग्री किया कि आप अपना जर्नी, नॉलेज हम सबके साथ शेयर करोगे। Not a problem. So let me go back to my graduation. So I did my graduation in Pune, College of Engineering, in Electronics and Telecommunication. At that time, when I did my graduation, there was a lot of demand for IT. And CDAC had come up with a course saying Diploma in Advanced Computing, which would help you to get into IT. So I did that, and then I started my first job in IT. This was when? This was 97, 98. And the incidental or destiny, the first job was in finance. So although it was in IT, I was in a financial bank based in Mumbai. So there, as a part of first job, I realized I'm fascinated by finance. Although I was very good at technology as well, but I'm fascinated by finance. So that kind of struck me that I want to develop this further. And since it was part of my job, it was very easy for me to get the domain knowledge which was readily available. So when you speak to business users, they would tell you. When you're developing systems for the bank, they would tell you how this works, how that works. Although this was not institutional banking, this was retail banking. But still, lending, interest, compounding, all those basic personal finance concepts were reinforced on the job as a part of this. So I did this particular job till 2000. Okay. And in 2000, as you might recall, there was a wave to go to the US if you're in IT. So I also went to the US. In US, I worked in a consulting company. So that consulting company was again incidentally in finance. So we were consulting for bank mergers, we were consulting for process optimizations within bank. So again, that was retail banking domain. But at that time, the retail banking domain got expanded to other products within the retail banking. So it could be stock lending, it could be e-treasury, it could be currency and so on. Although everything on the retail side, nothing on the institutional side. And that particular job, my initial belief of doing something in finance got reinforced, so to speak. When that happened,
I realized that I need to get a formal education in finance. Although, as a part of the job, I was getting a lot of exposure. So then I decided to do my post graduation in management with finance as major. That I did in the US. Now, once I did that, then my profile was kind of very unique. I came from a technical background and I knew finance. So it was like a techno functional profile, not totally with finance, not totally with technology, but a mix of both. And that offered me a lot of good opportunities. As a part of that opportunity itself, I started working in a treasury department of the bank, because that shift was very good from retail to institutional. In treasury, you are managing bank's money, so to speak. Essentially, it's a techno-functional role, so you're developing systems. Correct. But ultimately, you're managing money for the bank. So it's like being your own fund manager and needing to develop systems for the same. So that exposure gave me a lot of sound footing in terms of how you think about managing money, how you think about risk, how you think about positions management, how you think about asset allocation, and all those kind of things. What happened with that is, after the Treasury Bank, my manager, who was in that bank, moved to London. And then he offered me a job in London. And that was out and out institutional trading. So the job's profile was something like, I'm developing a trading system for the over-the-counter trades, for index options, for Delta One desks, for arbitrage, and for index options. And that gave me such a good knowledge about how you think about risk. Is that, and that has stayed with me forever. कि ऐसा हुआ ही नहीं है कभी कि मैं ये बेसिक्स भूला हूँ. In terms of my building the pyramid of knowledge, that is so sound, and that I consider myself very lucky. Wow. Because I don't have any exciting stories in terms of मैंने ये trade किया, ये गलत गया, मेरा account blow हुआ. Because whenever I'm taking the trade, all these sanity checks have been so much ingrained, because I was part of the job who was more concerned about risk rather than about exit, entry, return. Risk was paramount. And that has stayed with me in my trading journey, that risk is paramount for me. Whenever I do anything, risk is paramount. And that has been a second nature now. So that I consider myself very lucky, because people learn these lessons very expensively by blowing up their capital, by taking loans and then blowing up those kind of situations in the market. But those things have never happened with me because of this. So I definitely thank my background in terms of doing that. So we were in London. I was working in the trading desk, and I'll tell you one very curious incident. So I was new at that job, and we were supporting multiple desks. So index options, Delta One, and so on. So one of the head of the desk called us for a problem. Now, this I'm talking about before Dodd-Frank. So we will price the options ourselves, because those were all exotic options. We will expire them ourselves. There is no central clearing, and so on. So all those things is trade support, which I was part of. Now, this particular trader asked me I went to his desk. There were about 150 or 200 odd positions which he was managing for multiple clients and so on. And he mentioned one position from that. And he said that this looks incorrect to me, the pricing. That itself was quite shocking to me, that you have 150, 200 odd positions. You are able to locate just by looking at the screen, saying that this pricing does not look right to me. Because there is no way to find out the actual pricing until we run the calculation, because there is no central market data that is coming in. So then I went back and said, let me check what the problem is. So I called him and said, this looks like the problem. So we had to reset the position and then rerun the calculation. Then you will be okay. He said, confirm that to me and then do it. So I checked the code, made the changes. And what happened was, I resetted the position before confirming with him. Because he had said confirm the position and then reset. I reset. In 30 seconds, I got a call from that guy saying that who touched my book.
Although he knew that I'm working on it and I may be the one, but he was so particular about risk for every position that he was saying, don't touch my book without telling me. And that is one position out of 150, 175 odd positions he was managing in that desk. So these kind of incidences, what they do is they reinforce your mind about how important the risk is for a one single position. Because typically when you're a market maker, your risk is the one, you are a risk manager, because entry, you know how the product is given, exit, you know how the client wants to exit. In the holding period is what you need to worry about, how you are managing the risk, and how you are managing the risk defines your outcome. Because typically, let's say you are making 2% or 2.5% on that position. If you manage your risk well, all that money goes into the profit pool for that book, which in turn gets reflected into the bonus of the desk head. So all these kind of on the job training has helped me immensely in my next journey. And 2009 is where Lehman happened. So I was in that bank at that time. I was on the trading desk, and you could realize the gravity of the situation, that nobody expected that Lehman will not be bailed out. Not even the traders, not even the desk, not even our MD. Everybody was shell shocked when they heard the news that Lehman is going to go bankrupt, because everybody knew that there were so many complex counterparties and cash flows that everybody is going to get into a standstill. Everybody knew. And that's what happened. After that, the whole market tanked because of the liquidity problem. And then everybody realized the normal person realized the gravity of the situation. But the trading desk was dead silent when this thing happened. So even you guys did not have any idea about we always thought that it will be rescued, because the people who are working in that environment knew that it's one bank. If it goes down, the collateral damage will be so high that people will not let that happen. So it's like too big to fail kind of situation, which kind of was coined after the Lehman crash, but everybody knew that. So that was a very amazing incident in memory that I could figure that. So this was 2008, 2009. So by that time, I had decided to come back to India. So in India, what I did was, instead of joining an institution, I joined a consulting company, the IT consulting company, but on the domain side. So you would consult banks, you would consult financial institutions on how your trading system should be, how your risk management should be, how your order management should be, and so on. Because you have that kind of knowledge that you are bringing in from. So I did that for about 4 to 5 years or so. Now, in terms of my investing beginning, so as you know, when you're working for a bank, it's very difficult for you to do your own positions because of compliance, because of disclosures, and so on. So what you can do is that you can start developing your portfolio in mutual funds. You can start developing your portfolio in delivery investment. You cannot really do trading because you're privy to so much inside information and data. So they don't allow to do anything. So even though you are interested, you cannot really do that. But all those years were spent building my foundation in terms of my mutual fund portfolio as well as my stock portfolio. And all this thing is international, I'm talking about, because I'm not back in India yet. Right. So when I came back to India, that's when I started my Indian market journey, so to speak, which is 2010 onwards. So there I started working with taking individual positions, because you knew what happens in the international market. So you just translate that to Indian market. So you start developing your portfolio, you start developing asset allocation methodologies, you start how much to put in stocks, how much to put in mutual funds, how much to put in debt, and so on, because you have learned that already. So it's not like you need to learn that, but you just need to implement what you have learned. So that I did till 2015-16 onwards. All this while, I think one thing was very clear to me, that I do want to be a full-time trader. But that decision was not very easy to take, because what happens was, since you are doing so well, you have a lot to lose. Right. So if I can interrupt here,
why you wanted to become a full time trader? ऐसा क्या था दिमाग में कि I mean because you Yes, so were I liked markets. I liked risk, and I knew I'm good at it. And I didn't want to keep doing the corporate job till I retire. That was for sure. But taking that decision was the difficult part, because you are in a good position, you are earning very well, and the stability that comes with salary in the bank once a month is something that takes time to let go. okay. Because then you're getting into uncertain field from certain field. Now certainty is good, but then I was reading a lot, and there what happened was that one thing, I spoke to a senior person in my IT consulting company, and he was also a lot into markets. He had a similar background as me, that he had worked in an investment bank, and he was senior to me by 8 to 10 years at that time, and he was retiring at that time, because he was 15 years elder to me, and he was retiring. And then he said that now he wants to become a full-time trader, because he had a similar background. He was working on trading systems, he was working in the risk department, modeling, and so on. So we used to talk a lot besides the consulting part. And what he told me hit me a lot, that he said that I wish I could have taken this decision 10 years ago. So then we started talking about it. So then he said, what is the pros and what are the cons? So he said, think about it this way, that right now you're taking a decision. Is that decision 3 years down the line going to be easy? Because it's going to be even more difficult, because you would be earning more money, you would be at a better position, you would have more liabilities, and then that decision is never going to be easier. So the earlier you do it, it's the better. And that advice stayed with me, and then I left the corporate job in 2016. 2016. Yeah. And after that, I'm a full-time trader. So that's how I got introduced to the markets, my background. And since 2016, I've been a full-time trader since for last 7-8 years now. So उसके बाद का जो जर्नी था वो कैसे रहा? I mean, पहली बात, मतलब यहाँ पे जब जर्नी में बात कर रहा हूँ 3 एंगल से. Yeah. One, in terms of analysis. Yes. Like technical analysis, fundamental analysis, कैसे क्या कहाँ से start किया एक. दूसरा एक बात कि experience कैसा रहा starting से, because you were, I mean ये जो आपका पूरा जो background है, जो एक risk management आपके अंदर एक totally you were like when you learned risk management first, unlike many other journeys that we come across. तो इसमें आपका वो beginning कैसे रहा, वो start कैसे रहा, and आपने analysis कैसे start किया, because और आपने जब पोर्टफोलियो स्टार्ट किया कैसे स्टार्ट था, अप्रोच कैसा था? Right. So again, I have to thank one of my senior colleagues in the bank for that. So he used to do candlesticks a lot. Achha. So this is the part where I was in the wealth management division. Okay. So as a part of the portfolio building process, you would have lot of qualitative parameters for selecting stocks. You would meet the promoter, blah, blah, blah. Since you are a wealth management unit of a big bank, you would have lots of access. You will meet those companies, you will find out what those quarterly earnings would be, and all the fundamental analysis would be taken care of. And what this person used to do is, after he has done that short list of stocks, depending on good quarterly earnings, good profit, good sales growth, and so on, then he would go back to candlestick and see whether it made sense for the right entry. Achha. So the technical analysis was kind of used just for timing the entry, because exits would be dependent on the portfolio management rules. Exposure kitna hai, 4% hai, 5% hai, kam karna hai, because it's typically a HNI portfolio that you're managing for wealth management. But for entry, he used to do that, and I found that very fascinating. Achha. So then I started learning about candlesticks with him. So candlestick unse सीखा, patterns unse सीखे, basics unse सीखे. And then what happened was, then he introduced me to what you call as the market smith in the US. Right. Yeah. Right. And that opened up a lot of wealth of information to me. So the investment business daily, as well as the IBD as they call it, and the market smith US. So, and the candlestick chart, those became my go-to tools. Achha.
And then I started timing the entries of my portfolio as well. Although you would be not at a liberty to take any stock that you like because of the compliances and so on, Right. but you could take ETFs because there was no issue with that. So ETF also the same logic used to work at that time. So that's how I got into candlesticks. अच्छा. So then I, as a part of the wealth management exposure, I had a good understanding of fundamental analysis, that what to look for, growth कैसे होता है, peg क्या है, and all those thing was very clear. But you could use technical analysis for entry was something new to me at that time. So that's how I started. And the logic was so straightforward that I couldn't find any wrong in it. That you already have a list of companies which are working, but you are just timing the entry using the patterns. So that's how my journey in candlestick started. And so when I came back to India, that stayed with me. So when I started building my portfolio in India, MarketSmith was replaced. I mean, at that time, MarketSmith India was not there. Correct. So MarketSmith was kind of replaced. There was some screener.in website was there, which could give you the fundamental tools. And the trading view was, of course, there was for candlesticks. So that's how my tools were these two when I came back to India. Right. So I continued that for quite some time with a decent amount of success. So I will not say that they were not suitable to me. Then what happened was we interacted a lot. That was before Define Edge in a way. Right. But then when you started Define Edge, I think we had an informal session in Boat Club where you explained what the PNF charting is, what the Renko charting is, how it correlates, and how you can be more objective in your trading or noiseless in your trading, so to speak. And that kind of hit a chord with me. So what I said to myself that I already know this. So let me figure out whether what you are saying makes sense to me from this perspective as well. So for a lot of time when I was learning PNF and Renko, I attended one of your first 2-day seminars as well. So after that, lot of time I had spent comparing the charts. Okay. So let's say, in fact, if you remember or not, I don't know, but after the training itself, I had told you that I think I like super pattern a lot, if you remember. And that super pattern could be a trading system in itself. Yeah. So why I was telling that I could correlate that you're looking at a high tide flag where you have a pole, then you have a consolidation, and that super pattern or the anchor follow through is pretty much the same. Although complexity is reduced a lot because you don't have to find out patterns, you don't have to look into the timing aspect of it. You're only looking at price and that's it. But that was a major shift to me because here I was doing price and volume and time, because daily charts, weekly charts, you would look at weekly, then you time your entry on daily, and here the time element suddenly vanished. So that was a good learning curve. So if somebody asks me right now that there was a lot of learning involved and as well as lot of unlearning involved as well from the background that I had built. So although right now the situation is I have not let go of candlesticks completely, because the US system that I run is still totally on candlesticks. Although I am trying to get US data into TradePoint, as you know, and then trying to build something. But all the systems that I run in India are either on PNF or Renko. Thanks to you. All right. Yeah. So, see, this unlearning part is extremely difficult in a way. It is. And see, it is not always necessary to unlearn something. Of course, you learn, you come across new things, आप उसको देखते हो, समझते हो, and then this was new to me कि आपने you compared charts and observed setups. This was interesting. Even I've done a lot ये सारा चीजों में. A lot of concepts came from there actually. Also comparisons से, and then how you can remove complexities, वो सारा चीज. तो इसमें जो with noiseless charts, what was the most important thing जो struck किया? Because given your experience, ये सारा जो चीज build किया portfolio में,
what was the most important thing? Objectivity? Was it objectivity or something else? There are three things I would think. One is objectivity. Second is less noise in terms of how many patterns you want to learn and so on. Because in candlestick you have hundreds of patterns. How many you will follow? How many you will trade? You will have to figure out your subset. Here, the patterns at that time were very few, and the patterns made basic sense to me. That you are looking at an anchor column, which is probably a momentum indicator, you want to call it supply demand zone, and whatever you want to call it. That was so intuitive to me in terms of incorporating that in my rules, that it became very easy to me to adopt to that. That was the first advantage. The second advantage I found, which is lately, that if I have to tell my rules to somebody else and somebody else has to execute that system on my behalf, then point and figure and Renko makes so much more sense, because you can easily explain that to the other person if he is not carrying the baggage of candlesticks and other things. So ये एंकर कॉलम है, ये फॉलो थ्रू है, ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे होल्ड करना है और यहाँ पे एग्जिट करना है. That rule book becomes very easy to delegate. That is one of the best parts I have found in PNF and Renko. तो ये डेलीगेशन आई नो कि वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन वहाँ आए उसके पहले ये जो जर्नी था, आई मीन व्हेन यू स्टार्टेड ये 2016 के बाद एंड यू लर्नड ऑल दिस, सो ये टाइम में इफ यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंस, बिकॉज जर्नी एज अ फुल टाइम ट्रेडर, वो अपने आप में इट इज लाइक लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो कि क्या थॉट प्रोसेस रहा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, एंड व्हाट वर द डिफिकल्टीज. See, one of the main difficulties is uncertainty. That is definitely something that you have to build your mindset for whenever you are taking this step. Right. Because that is certain that even if you are a great trader, the trading returns are not going to be consistent. They are going to be lumpy. You will get 2 or 3 month very good returns which would take care of the whole year. Right. And then for next 5 to 6 months, you may not get good trades or good returns. But I think what is important in that is where my previous upbringing comes into picture, that whenever I'm not getting good setups, I will not trade. So that is why I said trading full time does not mean full time trading. Very well said. Yeah. So, and that is one of the key learnings, and that made my life much easier with objective setups. That अगर setups ही नहीं आ रहे हैं तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं, even though I'm in front of the terminal. And that mindset is something that you have to develop on your own. Otherwise, see, ट्रेड ब्रोकरेज और इतना कमोडिटाइज हो गया है ना पूरा ये कि आपके पास किधर भी जाओ एक्सेस है. सही बात है. ब्राउजर पे जाओ, फोन पे जाओ, सो यू हैव टू कंट्रोल कि कब आपको ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है. एंड टू लर्न that cash is also a position takes a lot of time. Correct. Even if you're not trading, that itself is a position. Right. And to take to that level in terms of कि market कैसा लग रहा है अभी तक, as there is a term in the US market which is used, situational awareness, as they call it, that you have to understand how the broader market is doing before you take the trades. Right. So either you don't take the trades if the broader market is not performing, or you do position sizing in such a way that you are not getting hit by a lot of breakout failures in adverse market conditions. So building that sizing rules, building that money management rules took a lot of time. So learning the setup is relatively an easy part, but when to pull the trigger is what takes time. Is what I have observed in last few years. Wonderful. So we'll come back to this. ये इसमें और दो चार interesting मेरे questions है, but that we will discuss after we discuss the setup. Sure. ये जो I think आपने इसके बाद थोड़ा expand भी किया. You have kind of dealers जहाँ पे आपने yes. So well, there is a background for it. So what happened was, while I was doing trading on my own, you hit rough patches कि ये साल में कुछ पैसा नहीं बन रहा है, या ये 2 क्वार्टर में
जो भी मैं ब्रेकआउट ले रहा हूँ वो फेल हो रहे हैं. So, but if you are dependent on the markets for earning, you need to devise a mechanism that some consistent cash flow should come in always. So, as you call it, asset allocation. So, not 100% of my money should be only in a long only delivery portfolio. Some should be in non-directional strategy. Some should be in directional strategy. Some should be in commodity. All that gradual improvement happened based on the market feedback. So that currently I trade typically 4 systems. One is a long only delivery system that we will look into. I trade a directional FNO system. I trade a non-directional FNO system, and I trade a commodity system. Now, my journey has been such that asset allocation is probably has become equally important to me as risk management. Can you explain more about asset allocation? थोड़ा सा इस तरह से कि people can also understand. मतलब when you say asset allocation. So asset allocation, I will be very simply put. Let's say मेरे पास 100 रुपए है. ठीक है. मेरा एक चॉइस कैसा है कि 100 रुपए में मैं 100 रुपया लॉन्ग ओनली डिलीवरी में डालूं, इक्विटी एक्सपोजर खत्म. दैट इज माय सिंपलेस्ट ऑप्शन. नाउ दैट विल पे मी मनी व्हेन मार्केट इज डूइंग वेल, माय ब्रेकआउट्स आर डूइंग वेल एंड आई एम गेटिंग गुड मनी. नाउ अगर मैं 100 के बजाय वहां पे 40 रुपए डालूं, तो मेरे पास 60 रुपए ऐसे लिए बचते हैं कि जब ये सिस्टम मुझको पे नहीं कर रहा है, तो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो मुझको पे करे. ये सिस्टम कब नहीं वर्क करेगा? जब मार्केट डायरेक्शनल नहीं है. सो मार्केट इज इन रेंज बाउंड फेज और मार्केट इज नॉट गिविंग गुड ब्रेकआउट्स, देन द नॉन डायरेक्शनल सिस्टम वुड पे मी. सो दैट्स हाउ I started with non-directional system. Now, designing non-directional system was not a big deal because of my background. So I knew options in and out. I knew how to. So it was just a question of adapting those concepts to Indian market. That took a bit of time because you have to understand. You have to take test positions. You have to understand, respect the liquidity, respect the market conditions, and then design the system. So that system has been running well, very well. So that becomes the second part. The third part is whether you will be in a position to make money on a shorter time frame. So whether it's intra or a swing trade, whether you are holding that trade for 2-3 days and 5 days, that's the genesis of the third system. And the fourth system is something which I was always favorite about, but I couldn't do it justice, was the commodities one. Because of the timings. कि अगर आप अकेला बंदे हो तो आप क्या क्या करोगे दिन में? 9:15 से मार्केट शुरू होगा, तब आप टर्मिनल पे रहोगे और कमोडिटीज का मार्केट बंद होता है मिडनाइट. एंड आफ्टर दैट ऑन वीकेंड यू हैव टू डू एनालिसिस, यू हैव टू डू शॉर्ट लिस्टिंग, यू हैव टू सेट अलर्ट्स एंड सो ऑन. ये भी है. तो दैट्स व्हाई कमोडिटी वाज काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड. एंड व्हेन ऑल दीज 3 systems were gradually mature, then I introduced the commodity system, and for that I ask the dealer to punch the trades for me. I don't sit in front of the terminal. So out of these 4 systems right now, there are 3 systems which are run by dealers. Only one system is something which I trade. So how I have distributed, the long only delivery is my mainstay. So that is 40% of my capital. And all the rest of the 3 systems have 20-20-20. Interesting. Because I want the non-directional systems to pay my expenses when this system is not doing well. And what I have realized when I introduce the commodity system, that acts as a natural hedge to your long only. Because that is where probably, that is one thing where I have to thank you as well. Because the relative strength part was something which was always known to me. Correct. You have a lot of indicators in TradingView. RS positive, 55 and so on. But to make it available on the same platform, in the same metrics, was a boon. That saved me a lot of time. Because you could shortlist on the strongest stocks and then do that. So the relative strength works here as well. And relative strength works in my gold exposure as well in commodities. For example, let's say I'm doing Nifty against gold. And that RS is telling me that gold is stronger, and I get a long in my trading system. I just have to
Right. let it go, because it's definitely going to work. Yeah. I don't have to think twice about it. Okay. Let's discuss your trading setups first and then we'll come back Sure, to this. will do. So you said you are going to discuss two systems Correct. today, है ना? Yes. आज हम लोग करेंगे एक one is your long only, your major Correct. system, Correct. and जो cash में है, and हाँ. second is commodities. Commodities. Right? So start long only से करते हैं. चलेगा. Long only से शुरू करते हैं. We'll go through the details and then we will talk about commodities. Sure. ठीक है? Yes. Okay. So the long only system has two approaches. The fundamental approach as well as the technical approach. So if you read the literature available, there are lots of practitioners who have done that. US market में Stan Weinstein की book है. Then you have William O'Neill, which is the market smith. दोनों का फंडा ये है कि आपको दोनों चीजें देखनी चाहिए, कि आपको फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए और आपको टेक्निकल्स भी देखने चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. नॉट दैट यू विल गेट 100% प्रोबेबिलिटी, बट जो आपका ट्रेड एक विनर होने का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए. सो उनका जो अप्रोच है वो अलग है थोड़ा सा, जो मैं यूज करता हूँ उनसे, लेकिन बहुत सारा जो मैंने सीखा है वो उन्हीं से सीखा है. बट आई हैव ट्राइड टू अडॉप्ट दैट टू इंडियन मार्केट्स, इंडियन कंडीशंस एंड सो ऑन. वंडरफुल. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, so funda instead of saying techno funda, which is a normal, I've said in funda techno because I'm looking at fundamentals first. अच्छा. And technicals later. Okay. So if I have to, जो इसका analogy ऐसा है कि दोनों चीजें important है, लेकिन मैं fundamental analysis उसके लिए यूज कर रहा हूँ कि मुझको जो so called बुरी कंपनीज है वो मुझको नहीं चाहिए. सो मैं फंडामेंटल एनालिसिस यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन के लिए, नॉट फॉर सिलेक्शन. ओके. एंड देन एक बार मेरे पास यूनिवर्स आ गया कि उसमें गलत कंपनी तो कोई नहीं है, जो है वो सारी अच्छी है, ये पता नहीं. लेकिन गलत कंपनीज तो उसमें बिल्कुल नहीं है. वो मेरा यूनिवर्स है और उस पे मैं प्राइस एक्शन चेक कर रहा हूँ विद द पैटर्न्स. दैट इज द क्रक्स. सो अगर आपको सिस्टम की एनालॉजी है तो फंडामेंटल्स आर एलिमिनेशन, टेक्निकल्स आर सिलेक्शन. इसका लॉजिक क्या है कि अगर मैं एनालॉजी दे दूं थोड़ा, कि क्रिकेट में कैसे करते हो आप, कि आप प्लेयर की टैलेंट देखते हो, ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत टैलेंटेड है, ये भी टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट का कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. टैलेंट बहुत सारे लोगों के पास है. दैट इज द एलिमिनेशन. सो मैं ऐसे प्लेयर्स मेरे टीम में मुझको चाहिए ही नहीं कि जिनके पास टैलेंट है ही नहीं. क्या है, कितना है, ये मुझको पता नहीं है. दैट इज माई एलिमिनेशन. एंड माई टेक्निकल क्या है कि प्लेयर का अभी का फॉर्म कैसा है. एंड ये जो चीज है ये मुझको सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म में है क्या नहीं प्लेयर, कि रिसेंट इनिंग्स अच्छे खेला है, नहीं खेला है, क्या एवरेज है. ऑल दैट कम्स इनटू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. दैट इज द एनालॉजी. बहुत अच्छा एनालॉजी. सो वी विल गो अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट, कि फंडामेंटल एनालिसिस में अचीव क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप अगर रडार जो आपका ही टूल है, मैं वही यूज करता हूँ. आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट बैड कंपनीज बाय क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स. क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा फील्ड है कि there are some quantifiable parameters, some qualitative parameters, कि मुझको पता नहीं है कि प्रमोटर क्वालिटी यहाँ पे अच्छा है नहीं है, because that is subjective. Correct. मैं क्या देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव क्या देख रहा हूँ मैं कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है. मैं ये देख रहा हूँ कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रहा है या नहीं बना रहा है. राइट. और मैं ये देख रहा हूँ कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव है या नहीं है. तो एक्चुअली वो पैसा बना रहा है या नहीं बना रहा है. और इसके जो पैरामीटर्स है वो आप देखोगे, वो पूरे क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हैव केप्ट ओनली 8%. अच्छा. सो मैं यहाँ पे ऐसे कंपनीज ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ जो सबसे अच्छे हैं. मैं यहाँ पे ऐसे कंपनीज ढूंढ रहा हूँ कि जो अच्छे हैं, थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन बुरे नहीं है. तो ये ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ है क्वार्टरली, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर. उसमें मैं कंसिस्टेंसी चेक कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे. ईयर ऑन ईयर पे मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ और फिर ROC देख रहा हूँ 8%.
तो ये जो स्कैन है वो मुझको ऐसे प्लेयर देगा कि जो जिनके पास टैलेंट है या नहीं मुझको पता नहीं है, लेकिन मुझको ये पता है कि टैलेंट नहीं है ऐसा कोई भी बंदा इसमें नहीं है। गॉट इट। सो इनको मैं इन क्रिकेट एनालॉजी में ट्रेनिंग कैंप पे लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो ऐसे है कि ये अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। सो ये इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो every quarter I will run this, because whenever there are new quarterly results, I will get new candidates who have talent, so they have to be included in my universe. So मैं हर एक बार 3 महीने में आफ्टर क्वार्टरली सेशन अर्निंग सेशन I will run this क्या। So ये जो इससे जो स्टॉक्स आएंगे वो आपका यूनिवर्स बन गया, वो मेरा यूनिवर्स बन गया। पूरे क्वार्टर के लिए वही यूनिवर्स नहीं, सो दैट इज माय टैलेंट यूनिवर्स। अच्छा, अगर एनालॉजी में हम टिके रहे, ठीक है। अभी उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका ये जो टिपिकली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आप जब भी ये रन करते हो ना स्कैन, तो आपको 150 to 200 कंपनीज आएंगी, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में। अच्छा, पूरे एनएससी यूनिवर्स में। अच्छा, टिपिकली कभी कभी 250 आएगी, कभी कभी 125 आएगी, बट दैट इज द रेंज। ओके, ठीक है, तो वो मेरा यूनिवर्स हो गया क्वार्टर के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 125-150 लोगों का मैं फॉर्म देखूंगा। अच्छा, कि प्राइस एक्शन कैसा है, और उस पे मेरा सेटअप है टेक्निकल। तो ये मेरा फंडामेंटल स्कैन हो गया, और ये मेरा टेक्निकल सेटअप है। टेक्निकल सेटअप क्या है? एंकर फॉलो थ्रू। तो एंकर क्या है? तो स्ट्रॉन्ग डिमांड। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, अगर आपको एंकर कॉलम दिखा है, इसका मतलब काउंटर में स्ट्रॉन्ग डिमांड है, अदरवाइज एंकर कॉलम बनेगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग डिमांड एनालॉजी में कैसा रहता है कि ये बंदे ने रन बनाए हुए हैं, फॉर्म में है बंदा, राइट। नाउ मुझको अभी मेरे टीम में किसको लेना है कि जो फॉर्म में है, लेकिन उसका एंट्री जो है वो अफोर्डेबल चाहिए मुझको ज्यादा पैसा लूज नहीं करना है उस प्लेयर पे। तो ये मैं कैसे देखूंगा कि एंकर कॉलम के बाद जब वो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस के बाद जब वो फॉलो थ्रू देगा, तो मेरे इनिशियल एनालिसिस का वो वैलिडेशन होगा कि ये जो डिमांड मैंने एनालाइज किया है वो वैलिडेट हो गया है, रिट्रेसमेंट कम है, मेरा एंट्री अफोर्डेबल है। ठीक है, तो जिनको अगर पता नहीं है कि एंकर कॉलम एक पॉइंट एंड फिगर का कॉन्सेप्ट है, ये मोमेंटम पैटर्न है। करेक्ट। जहाँ पे एटलीस्ट 15 बॉक्सेस होने चाहिए। करेक्ट। पॉइंट एंड फिगर के कॉलम में, तो उसको हम एंकर कॉलम कहते हैं। जब वो एक्स है, जो बुलिश कॉलम है, उसमें कम से कम 15 बॉक्सेस है, तो बुलिश एंकर कॉलम। करेक्ट। तो ये आपका फॉर्मेशन है एक, जो आप पहले देखते हो कि अगर मोमेंटम है इन स्टॉक्स में, या वो पैटर्न है एंकर कॉलम, सो वो एक ऐसा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप उस फॉलो थ्रू देखते हो। उसका फॉलो थ्रू कैन बी अ डबल टॉप बाय, जब एक कॉलम ऑफ एक्स प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर चला जाता है, तो वो ब्रेकआउट हो गया। करेक्ट। तो एंकर कॉलम के बाद ब्रेकआउट, ये आपका सेटअप है। ये मेरा सेटअप है, और ये सेटअप के बहुत सारे वेरिएशंस है। राइट। It could be super pattern, it could be ABC, it could be T20. You are looking at the same thing. You are looking at momentum है क्या स्टॉक में, और उसका कंफर्मेशन है क्या। हाँ, मतलब एंकर कॉलम के बाद या तो इमीडिएट ब्रेकआउट आ गया, तो सुपर पैटर्न हो गया, सुपर पैटर्न हो गया, T20 हो गया, या कुछ कॉलम्स बाद आया तो ABC हो गया। हाँ, तो वो सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखते हो एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू। करेक्ट। ठीक है। अभी इसमें अच्छी बात क्या है कि फॉलो थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। Why? Is that no other field will allow you. Let's say आप रेसिंग कर रहे हो, you are on a derby track, you are racing. आपके पास सारे comparisons है कि कौन से घोड़े दौड़ रहे हैं, कौन सा जॉकी है, कौन सा हिस्ट्री है, क्या ऑड्स है, एवरीथिंग आपको पता है। आप उस पर पैसा लगाओगे, फिर रेस शुरू होगा। रेस शुरू होने के बाद आप पैसा नहीं लगा सकते। फॉलो थ्रू में आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। अच्छा। क्योंकि फॉलो थ्रू में आप रेस शुरू होने के 15 या 20 सेकंड बाद देख रहे हो लोगों के पोजीशंस, कि कौन सा घोड़ा आगे दौड़ रहा है, और आप उस पे पैसा लगा रहे हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अदरवाइज इन एनी अदर फील्ड, बिकॉज योर इनिशियल एनालिसिस हैज बीन कंफर्म्ड लाइव विथ फॉलो थ्रू। That is the best part I like about follow through and the continuation patterns which I use for पिरामिडिंग। बट ये कॉन्सेप्ट है। आपके एनालॉजीज अच्छे हैं। राइट। सो फॉलो थ्रू इज मतलब मोमेंटम हो रहा है, और उसमें आपको बीच में अपॉर्चुनिटी मिल जाता है पार्टिसिपेट करने का। और डिफरेंस क्या है कि तब प्राइस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। करेक्ट।
लेकिन माय आरआर फेवरेबल है क्योंकि वो रिट्रेसमेंट का मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है. हाँ एंकर कॉलम में मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा? एंकर कॉलम का बॉटम, दैट वुड बी वेरी हाई. राइट. तो मैं एंकर कॉलम पे एंट्री एनीवे ले नहीं सकता. तो मुझको वैलिडेशन भी चाहिए और मुझको अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए. ये दोनों चीजें मुझको एंकर फॉलो थ्रू में मिलती है. दैट इज व्हाई आई लाइक दिस सेटअप. ठीक है. तो ये अगर आपका एक तरह से आपका एंट्री सेटअप है. यस, जैसे ये एफटी तो आपने वो फॉलो थ्रू आ गया तो आप बाय करते हो. करेक्ट. आपका स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल ऐसा कुछ होता है? स्टॉप लॉस मेरा टिपिकली इज द डबल बॉटम सेल फॉर सुपर पैटर्न. अच्छा. इनिशियल एंट्री इज माय बेरिश पैटर्न. कोई भी बेरिश पैटर्न हो, आप हाइपोल ले लो या डबल बॉटम सेल ले लो, दैट विल बी माय एग्जिट फॉर द इनिशियल एंट्री. एक बार अगर इनिशियल एंट्री पे वो बजा नहीं है और घोड़ा आगे चला गया है, तब मैं पिरामिडिंग करने वाला हूँ, तो मेरे एग्जिट के रूल्स चेंज होंगे. बिकॉज मैं पूरा पैसा पोजीशन पे स्ट्रेट अवे नहीं लगा रहा हूँ, मैं पिरामिडिंग कर रहा हूँ. मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये अपने को एक बार थोड़ा और आपका अंडरस्टैंडिंग इस एक्सप्लेनेशन लगेगा. हम लोग चार्ट पे इसको डिस्कस करेंगे. चलेगा. ठीक है. ओके, सो दिस इज द टेक्निकल स्कैन. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा डिफाइन एज पे कर सकते हो आप. देयर इज नो अदर टूल रिक्वायर्ड. राइट. सो रडार पे आप स्कैन करो, उसका यूनिवर्स बनाओ. ठीक है. वो यूनिवर्स में 150 या 200 स्टॉक्स होंगे. ठीक है. नाउ ये 200 स्टॉक्स में पूरे के पूरे तो ट्रेड नहीं कर सकता. राइट. कैपिटल इज लिमिटेड. ठीक है. मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन से 50 स्टॉक्स मुझको वॉच लिस्ट में चाहिए वीक ऑन वीक? ठीक है. तो कैसे होगा कि 150 में एक का आरएस रैंक समझो 130 है, लेकिन वो बंदा टैलेंट में तो आ गया है लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है. तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन है आपका, पीएनएफ फ्यूजन मैट्रिक्स, वो मैं एवरी वीकेंड रन करता हूँ सेम यूनिवर्स पे. यूनिवर्स चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर एक बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया, वो फॉर्म में आ गया, तो उसका आरएस रैंकिंग बढ़ेगा. आरएस रैंकिंग अगर वो टॉप 50 में आ गया, तो वो मेरे एक्टिव वॉच लिस्ट में आ जाएगा फॉर दैट वीक. एंड देन आई विल लुक फॉर अफोर्डेबल सेटअप्स इन दो स्टॉक्स. गॉट इट. तो आपका आरएस जो है वो आप फ्यूजन मैट्रिक्स से करते हो? यस. सो आरएस रैंकिंग जो टोटल रैंकिंग. करेक्ट. आरएस का जो रैंकिंग रहता है ना, सिर्फ आरएस, क्योंकि प्राइस पैटर्न तो मैं अलग से देखने ही वाला हूँ. तो सिर्फ आरएस का रैंकिंग जो इसको आप सॉर्ट करते हो टॉप 50, उसमें से टॉप 50 है, वो मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा. वो मेरा वीकली वॉच लिस्ट हो गया. समझ गए. और पूरे नेक्स्ट वीक फिर आप पूरा मैं उधर से ही ट्रेड करूंगा. ये अप्रोच का एडवांटेज ये है कि जब मैं नेक्स्ट वीक वो रन करता हूँ, जो मेरे टॉप 50 है जो परफॉर्म नहीं किए हुए हैं वो निकल जाएंगे और 10-12 ऐड हो जाएंगे जिन्होंने ये वीक में परफॉर्म किया है. गॉट इट. राइट. सो दैट एक्टिव वॉच लिस्ट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी वीक. ठीक है. दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट, बट योर टैलेंट पूल इज सेम. गॉट इट. अभी समझ लो आप एक सिस्टम में आपने एंट्री किया, एंकर फॉलो थ्रू मिला, आपका एंट्री हो गया. नाउ एसएल तो बजा नहीं एंड द स्टॉक वेंट वेरी नाइसली अपवर्ड्स. व्हेन विल यू ऐड टू दैट? बिकॉज मैं पूरा पैसा स्ट्रेट अवे तो नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझको कंटिन्यूएशन पैटर्न पे और पैसा लगाना है. द सेम एनालॉजी होल्ड्स कि रेस अभी आधा हुआ है, आधा खत्म हो रहा है, ऑड्स अच्छे नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि घोड़ा सबसे आगे है, तो मैं उस पर और ज्यादा पैसे लगाऊंगा. सो बाय द टाइम वो पहुंचेगा वहां पे, मेरा सबसे ज्यादा एलोकेशन वहां पे होगा और जो मेरे लूजर्स है वो ऑटोमेटिकली कट होते जाएंगे क्योंकि मैं उस पर ज्यादा पैसा तो लगा ही नहीं रहा हूँ और जो स्टॉप लॉस है वो तो बचेगा अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है. तो आप पिरामिडिंग करते हो. यस, एडिंग टू विनर्स. करेक्ट. ठीक है. सो और समझते हैं. तो पिरामिडिंग का रूल्स सिंपल है. एज यू टेल कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, एक बार मेरा एंट्री हो गया, उसके बाद मुझको अच्छा डबल टॉप बाय मिला, अफोर्डेबल है, मैं एंट्री करूंगा. अच्छा. उसके बाद टर्टल मिला, मैं ब्रेकआउट करूंगा. उसके लिए मेरा सेटअप इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि सेटअप ने मुझको क्वालिफिकेशन दे दिया है एंकर फॉलो थ्रू ने. उसके बाद मुझको बस ऐड करते जाना है ऑन एवरी बुलिश कंफर्मेशन. सो आई विल वेट फॉर बुलिश कंफर्मेशन. आई विल नॉट ऐड स्ट्रेट अवे. टाइम वाइज एडिशन नहीं है ये. आई एम वेटिंग फॉर अनदर पैटर्न टू डेवलप क्योंकि वो मेरे इनिशियल एनालिसिस का वैलिडेशन है. अच्छा. तो आप वो कितने मैं 2 बार पिरामिडिंग करता हूँ. 2 बार. सो टिपिकली अगर आपने बचपन में खेल खेला है 5-3-2, सो द वे इट यूज्ड टू डू इज दैट इट विल रोटेट.
किसी बार आप 5 पे आओगे, किसी बार 3 पे आओगे, किसी बार 2 पे आओगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ, एंड दैट डिपेंडेंस इज द मार्केट ब्रेथ फॉर मी. ब्रेथ अभी जो है ये इसमें आप क्या देखते हो, स्ट्रेच, हीटर So वगैरह में? typically you have a market breadth indicator in R zone. वहाँ वो मैं रन करता हूँ N500 पे. N5 not 50, N500 पे. ठीक है. N500 पे रन करोगे you have bands. ठीक है. अगर उसमें MA crossover भी है. ठीक है. अगर MA crossover is from down, I will do it normally. 5-3-2. ठीक है. अगर MA crossover has not happened, it's still bullish. लेकिन वो ऊपर चला गया है already, it's heated. तो मैं 2-3-5 करूँगा. अच्छा. The reason behind that is I know that breadth is telling me not to take the positions, additional longs, but price is telling me otherwise. So you'll go long. I will go long, लेकिन मैं position sizing correct करूँगा. That is the difference. इसलिए वो 5-3-2 है और 2-3-5 भी है. That's why the market breadth is important. जो ब्रेथ का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है उसका कोई लेवल ऐसा कुछ है कि बिलो 50 होना चाहिए? नहीं, डिफॉल्ट सी दो चीजें देखते हैं ब्रेथ में. अगर एमए क्रॉसओवर बुलिश है या नहीं है. बुलिश है तो ही आप लोगे. ठीक है. लेकिन बुलिश है अगर, लेकिन वो ऊपर है. ऊपर मतलब वो जो टॉप का जोन है ना आपका 70 के ऊपर, तब मैं रिवर्स पिरामिडिंग करूंगा. मैं नॉर्मल पिरामिडिंग नहीं करूंगा. क्योंकि मैं प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहता हूं. तो मैं पोजीशन लूंगा, लेकिन उसका पोजीशन साइजिंग ऐसा होगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेथ मुझको बता रहा है कि मार्केट ओवररेटेड है. ठीक. तो अगर जिनको नहीं पता, ये ब्रेथ की जो बात हो रही है, पॉइंट एंड फिगर का एक X% ब्रेथ इंडिकेटर है जो कैलकुलेट करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स X कॉलम में है टोटल ग्रुप में. अगर 50% पे है तो 50% स्टॉक्स बुलिश है उस पूरे ग्रुप में. अब वो ब्रेथ इंडिकेटर का भी एक मूविंग एवरेज होता है. और वो जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश मार्केट है. आप नॉर्मल आपका पिरामिडिंग करोगे 5-3-2 वाला. करेक्ट. और अगर वो ब्रेथ इंडिकेटर ऊपर एक्सट्रीम जोन में, अब वो 75 है, तो आप फिर लॉन्ग करोगे, लेकिन आपका पिरामिडिंग का चेंज हो जाएगा 2-3-5 हो जाएगा. अब 5-3-2 का मतलब है कि अगर आप क्वांटिटी कर रहे हो, आपका लेट्स से 5 लॉट कर रहे हो एक बार, मतलब इट कैन बी एनी अदर नंबर, डिवाइड कर रहे हो, तो पहले 5 करोगे, जाएंगे, कंफर्मेशन में 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा और फिर खत्म. नाउ दीज 3 डिविजन्स जो है वो एक्सपीरियंस से आई हुई है कि 3 के बाद यूजुअली यू विल हिट अ स्टॉप लॉस. मतलब 3 बार पिरामिडिंग करोगे आप, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आपका इनिशियल स्टॉप लॉस नहीं होगा, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा. क्योंकि जब आप पिरामिडिंग करोगे आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल करोगे. तो जब फॉर एग्जांपल 5-3-2 आपका पिरामिडिंग हो गया, अब आप पूरे 5-10 पोजीशन से राइड कर रहे हो, आगे आप कोई पिरामिडिंग नहीं करोगे. जब आपका स्टॉप लॉस बजेगा तो पूरे 10 का बजेगा. देन यू आर ऑल आउट. मान लो 5 और 3 हो गया, 2 नहीं हुआ है, तो उसके बाद का स्टॉप लॉस 8 ऑल आउट. Exit के लिए there is no partial exits, because exit is telling me your initial analysis has been invalidated. Otherwise exit मिलेगा ही नहीं मुझको. तो जब initial analysis invalidate हुआ है तो रखना क्यों है? And the most important part is, see, this is my institutional background again. Lot of people they do is they average down their trades. In my life I have never seen a professional trader averaging it down. Ever. He will only pyramid it up. This is very interesting. अच्छा, पता है क्या है? I mean, in trend following या pyramiding, ये बहुत ऐसे normally even lot of people also know कि ये अच्छी चीज होती है, pyramiding करना चाहिए. हाँ, but वो करना actually बहुत difficult होता है. बहुत difficult है because there is something called as anchoring bias. अगर आप एक हाथ स्टॉक 100 रुपए में ले रहे हो और वो आपकी तरफ बढ़ा और 120 हुआ, तो 120 पे एडिशनल क्वांटिटी लेना जो आपने 100 रुपए में लिया है, दैट बिकम्स अ माइंडसेट चैलेंज. आपको लगता है आप ऊपर में ले रहे हो, महंगा ले रहे हो, ये तो सस्ता मिल रहा था. बट सी, स्टॉक मार्केट इज समथिंग वेयर सेल इज नॉट टू बी टच्ड. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन, बिकॉज सेल इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. So, ये एक्चुअली एक तरह का ये एग्जीक्यूट कर पाना पिरामिडिंग, ये अपने आप में एक अचीवमेंट होता है. आई हैव सीन दिस. मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ. इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन ये आपने जब से आपने ट्रेडिंग जर्नी वगैरह स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से आप पिरामिडिंग करते हो या? So because again the same thing, your background, the background is that people tell you do what is working. Don't run after something else. Correct. Do what is working. Correct. आपका जो पहला स्टॉक है जिसमें आपने 5 रुपए डाला है, समझो, अगर वो
कंफर्म कर रहा है कि आपका इनिशियल एनालिसिस सही था, तो आप उसी पे ज्यादा पैसा दो ना, वहां पे आपको एडिशनल रिसर्च भी नहीं करनी है, वो सब हो चुका है, उसने टैलेंट भी है, फॉर्म भी है, तो उसको 1 डाउन पे भेजो ना टीम में। अगर वो 3 डाउन खेल रहा है तो उसको 1 डाउन पे भेजो, वो अच्छा खेलेगा। सेम एनालॉजी, सो दैट इज वन। क्योंकि सी and once the pyramiding happens, then the last part is exits, which is probably the most important part if you ask me. Yeah, absolutely. क्योंकि लोग एंट्री के पीछे इतना ज्यादा दौड़ते हैं, ये मैजिक इंडिकेटर आया, वो वो ले लो, उस पे एंट्री है, उस पे एंट्री है, दैट दोज थिंग्स डोंट मैटर मच इन द लॉन्ग रन। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू होल्ड, हाउ मच you hold, and when you exit. Entry is relatively easy. People think entry is 80% of the trading system. I like to think entry is only 20%. 80% is your holding and exit and pyramiding. जो actually why I'm telling you this is there are so many people who come to me कि अरे ये अच्छा, ये मैं ये indicator use करता हूँ. Fair enough. Everybody has their favorite indicators and they use it. Correct. But what they don't do is optimize the existing setup for their needs. they तीन महीना करते हैं, फिर अलग इंडिकेटर पे चले जाते हैं, वो 3 महीना करते हैं और अलग इंडिकेटर पे चले जाते हैं. That is not a good strategy. Every indicator works because that is why somebody has put in the efforts to create it. Yes. So see that there is a अभी एक बंदे को मैं थोड़ा मेंटर कर रहा था, तो ही वाज टेलिंग मी दिस, मैंने उसको एक बात समझाया था बहुत अच्छा, कि वो गालिब का शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाला, तो वो बस आप इंडिकेटर पे डाल दो, हजारों इंडिकेटर ऐसे कि हर एक इंडिकेटर पे दम निकले, बहुत निकले मेरे ट्रेड्स लेकिन फिर भी कम निकले। ऐसा है वो। सो इंडिकेटर के पीछे भागो मत। इंडिकेटर इज जस्ट अ टूल और अ टेक्निक। You don't have to worry too much about it. Right. कोई भी इंडिकेटर आपको एंट्री तो दे ही देगा, एक 10 में देगा, एक 11 में देगा, एक 12 में देगा, एंट्री तो मिलेगा ही आपको। सही है। सो आपका पैसा 10 या 12 एंट्री से नहीं बनने वाला है, आपका पैसा 12 से 20 जब तो वो स्टॉक जाएगा तब बनने वाला है। तो वो जो ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है, एक्चुअल गेम उधर है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मेरे पास ऐसे, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बीन टोटली इनग्रेन्ड इन मी, बिकॉज आई हैव वर्कड सो मच अराउंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स, आई विल नेवर मेक सच मिस्टेक्स। सो दैट वाज द मोस्ट, जो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ट्रू वाज। अच्छा, तो ये रिस्क मैनेजमेंट, अब यहाँ तक अगर मैं सही समझाऊं पूरा प्रोसेस, इफ आई कैन समराइज, कि आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस से आप स्टॉक्स निकालते हो। करेक्ट। वो आपके क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद आपके वो आपके जो स्कैन आपने समझा उस हिसाब से वो स्टॉक आ गए। करेक्ट। एक्चुअली वो पूरे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो स्टॉक्स है जो पहले आपका इनपुट है। फिर आप एक वीकली स्कैन करते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जिसमें फ्यूजन मैट्रिक्स आप रन करते हो और रैंकिंग के हिसाब से, आरएस रैंकिंग के हिसाब से स्टॉक्स फाइंड करते हो टॉप 50। आपके एक्सपीरियंस से टिपिकली 200 के आसपास स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस से आते हैं, उसमें से 50 स्टॉक शॉर्टलिस्ट होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। फिर उन 50 स्टॉक्स में आप नेक्स्ट वीक के लिए आप अपना ये एएफटी सेटअप देखते हो, जहां आपको अफोर्डेबल एंट्री मिलता है, आप वो स्टॉक्स लेते हो। उन स्टॉक्स में आप पिरामिडिंग भी करते हो। अगर नॉर्मल ब्रेथ कंडीशंस हैं तो 5-3-2 करते हो। अगर ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है तो 2-3-5 करते हो। एब्सोल्युटली राइट। तो ये आपका एक ओवरऑल प्रोसेस है। और आपका जो एग्जिट है वो डबल बॉटम सेल या हाई पोल, दैट इज इनिशियल। ये इनिशियल। अगर मेरा पूरा जो सिस्टम है, मतलब मैं इफ पूरा डिप्लॉय हो चुका हूँ, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, तो दैट इज द ओनली टाइम वेयर आई कैन कंसिडर गिविंग इट सम टाइम। तब मैं हाई पोल पे एग्जिट नहीं करूंगा, डबल बॉटम सेल पे एग्जिट, सिर्फ डबल बॉटम सेल, क्योंकि हाई पोल कुड बी फेल्ड एज वेल लेटर ऑन। करेक्ट। दैट्स द ओनली चेंज आई मेक। दैट्स इट। सो हाई पोल भी एक पॉइंट एंड फिगर का पैटर्न है, डबल बॉटम सेल एक बेसिक पैटर्न है। तो प्रीवियस होके नीचे गया तो आप एग्जिट करते हो। करेक्ट। एक हाई पोल फॉर्मेशन है, और एक बार आपका पूरा पिरामिडिंग हो गया फिर आप सिर्फ डबल बॉटम सेल पे करते हो। करेक्ट। ये बॉक्स वैल्यू कौन सा यूज करते हो आप यहाँ पे? सो अगर वो लार्ज कैप स्टॉक है तो 0.25 है, अगर वो मिड कैप स्मॉल कैप है तो वो 1%। यस, ठीक है। और आपका कोई ऐसा रूल है कि आप नंबर ऑफ स्टॉक्स एट अ टाइम कितने ओपन कर रखते हो? मैक्सिमम पोजीशंस ओपन आर 20। यस, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन
टू मेनी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज, क्योंकि एक कंपनी आपको बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन दे सकता है जो बहुत अच्छा चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कल का एग्जाम्पल अगर आप लोगे, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टॉक, बुलिश, अर्निंग्स वेल. एक ऑर्डर कल उनका गया, लेकिन वो 13-14% डाउन हो गया. तो इसलिए आपका थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा. अगर लॉजिक बिहाइंड दैट डाइवर्सिफिकेशन ये है कि कोई भी एक पोजीशन आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगा. और बहुत ज्यादा भी स्टॉक्स नहीं मुझको लेने, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ले लिया तो जो एक का परफॉर्मेंस है वो मेरे पोर्टफोलियो पे मटेरियल इम्पैक्ट नहीं देगा. So that 20 is a sweet spot for me. 15 to 20. Wonderful thing. Even research says कि इवन हम लोग भी जितना वो पोर्टफोलियो इस पे करते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स एक लिमिट के बाद जब बढ़ जाते हैं तो डाइवर्सिफाइड. एब्सोल्युटली ट्रू. और टू मच कंसंट्रेशन इज आल्सो वेरी रिस्की, बिकॉज़ कभी कोई स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो वो आपका ज्यादा रिटर्न मिलेगा. तो 20 इज अ गुड स्पॉट फॉर यू. सो 20 स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो है. यस. एंड ये आपका मेथड रन होता है. जस्ट अब मैं इफ आई गो बैक, आपने बोला एसेट एलोकेशन जिसमें 40% आपका वेटेज है टू दिस सिस्टम, राइट? करेक्ट, टू दिस सिस्टम. और उसमें वो जो आपके कैपिटल में आप 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो करते हो. यस, दैट इज द मैक्सिमम. नाइस. अगर उसमें 20 हो गया और फिर मुझको एंट्री आ गया, तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि कैपिटल वुड बी फुल्ली एलोकेटेड. राइट. और ये 20 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप एलोकेशन पिरामिडिंग के लिए भी आप साइड में कुछ पार्क करते हो. सो टिपिकली व्हाट हैपेंस इज, ये पिरामिडिंग जो है ना, वो 20 स्टॉक पे कभी होता नहीं है इन माय एक्सपीरियंस. क्योंकि टिपिकली 20% ऑफ द स्टॉक्स वुड गो अप टू 3 levels. सो आउट ऑफ दैट 20 पोर्टफोलियो का स्टॉक जो है अपना, उसमें से 4 स्टॉक ही ऐसे होंगे जो फाइनल एलोकेशन तक जाएंगे. अच्छा. कुछ दो में जाएंगे कुछ. लेकिन होता क्या है कि अगर ये भाग रहे और इसका एसएल उड़ा तो मुझको कैपिटल फ्री हो गया ना वो, तो मैं वो वहां पे डिप्लॉय करूंगा. गॉट इट. सो ये 20 स्टॉक्स में ही पिरामिडिंग के भी आ गए. मतलब इन अ वे इट इज पॉसिबल कि आपका एक स्टॉक ही इसमें 3 का जगह ले रहा है. करेक्ट. तो अगर आप समझो कि इनिशियल पोजीशन 5% है सब में, इक्वल समझो. इक्वल होता नहीं है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क. हाँ, लेकिन अगर इक्वल समझो तो किसी स्टॉक में 10% भी हो सकता है, क्योंकि 5-3-2 पूरा डिप्लॉय हुआ है. किसी स्टॉक में वो 5% जो 5% डिप्लॉय किया था उसका एसएल बच गया है, तो वो कैपिटल फ्री हो गया, वो मुझको नेक्स्ट पिरामिडिंग पे हेल्प करेगा. सो आइडिया ये है डिजाइन करने का कि आप हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स में रहो जो आपका इनिशियल एनालिसिस वैलिडेट कर रहा है. और अगर आपका फुल पिरामिडिंग हुआ है 532 तो 10%, अगर मैं इक्वल 5% की एलोकेशन लूं तो 2 स्टॉक्स का जगह वो ले लेगा. करेक्ट. ठीक है. यस, फाइन. अब इसको अगर हम कुछ चार्ट से पे देख सकते हैं तो ये जो सेटअप है मैं पिछले 4-5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ. ठीक है. तो व्हाट आई थॉट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया कि डेकनॉक 2020 में जो कोविड के टाइम हमने ऑनलाइन किया था, वहां पे मैंने कुछ चार्ट सेम सेटअप पे प्रेजेंट किए थे, तो मैं आपको वो बस दिखा देता हूँ. एंड देन वी विल गो इनटू सम ऑफ द न्यू चार्ट्स एज वेल, व्हिच इज द लेटेस्ट चार्ट्स. सो जिनको पता नहीं है, डेकनॉक इज डिफाइन एज कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे हमने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किया था, जिनमें अभिजीत जी ने शेयर किया थे अपने कुछ एनालिसिस और स्टडीज. तो वो अभी आप वो सेटअप भी वापस रेफर कर रहे हो. द सेटअप इज सेम. तो बस आप चार्ट देखो एंड देन यू विल बी एबल टू सी. वहाँ पे पिरामिडिंग और वो सब जॉट डाउन भी किया है. ठीक है. दिस इज Jupford chart 0.25. As you can see, this is anchor column, follow through. So here the first entry will happen. Right. This is the second entry. Right. This is the third entry. And DBS you have exited. And the setup works beautifully in intra as well. It's not that the setup is only for delivery. मैं वो delivery के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो इंट्रा के लिए भी उतना ही अच्छा वर्क करता है. हाँ, तो ये जो पहला सेटअप है, यहाँ पे आपका एक एंकर कॉलम है, उसके बाद डबल टॉप बाय है, वो आ गया. यहाँ पे पिरामिडिंग का पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ. 532. यहाँ पे 5 पोजीशंस लिए पहले में, फिर सेकंड में 3 और 2. ओके. और डबल बॉटम सेल पे एग्जिट. ये मूविंग एवरेज भी आप यूज करते हो? इट्स जस्ट फॉर गाइडेंस. आई डोंट यूज इट, बट द लेटेस्ट चार्ट्स दैट यू विल सी नाउ, दिस इज अ 2020 चार्ट. अच्छा. नाउ जो हमने डेकनॉक में प्रेजेंट किया था, द सेम चार्ट इज हियर नाउ. सो दिस इज योर Jupford चार्ट 2020, सेम सेटअप एज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि पहला एंकर कॉलम,
उसका फॉलो थ्रू, उस पे पहला पिरामिड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और DBS. राइट. Same. Now look at a एग्जिस्टिंग चार्ट. अच्छा. नाउ एग्जिस्टिंग चार्ट कौन सा है? कोफोर्ज. ओके. तो कोफोर्ज यू कैन सी अभी यहाँ पे पहला दूसरा मेरा पिरामिडिंग हुआ है. हाँ. ये पहला एंकर कॉलम फॉलो थ्रू था. हाँ. ये जो MA के ऊपर जो हुआ है वो. राइट. उसके बाद ये दूसरा है. अच्छा. सो 5 हुआ है, 3 हुआ है, 2 के लिए मुझको चांस ही नहीं मिला है. इट हैज रन अप. अच्छा. तो अफोर्डेबल फॉलो थ्रू मिला ही नहीं है. तो ये ऐप का एंट्री यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ बिकॉज वो अफोर्डेबल है. अफोर्डेबल को कितने बॉक्सेस? टिपिकली आई टेक इट 9 boxes. 9 boxes. So on a large cap, you are looking at 9 into 0.25. हाँ. So about 2.5 to 2.5% is your SL. एंकर कॉलम के बाद का जो फॉलो थ्रू होगा उसमें कॉलम ऑफ वो में 9 boxes से ज्यादा नहीं चाहिए. Yes. और डबल टॉप Correct. वो होगा तो ये आप Yes. एंट्री करते हो. Yes. और फॉलो थ्रू में भी सेम. Follow through में भी same. Affordability is my cornerstone. I will not do anything which is not affordable. Wonderful. Simple. अभी same chart on the mid cap. So as we discussed कि large cap पे 0.25 करेंगे, mid cap पे 1% पे करेंगे. ठीक है. Because mid caps और small caps are typically inherently more volatile. तो you have to give some space for that. Otherwise 0.25 में DBS तो ऐसे ही उड़ जाएगा. इसलिए 1%. ठीक है. अभी same case. So if you do AFT entry, pyramiding, TSL, same. What we discussed. Now this is a 2020 chart. Right. So my setups have not changed at all. What has changed is, for example, at that time I used to do only 532. Now I have added 235 from the breadth perspective. That's it. That's the only change I have done based on the market situation. This is so good. आप 5-7 साल से same setups कर same कर रहा हूँ. Absolutely same. बहुत अच्छी बात. इसके ऊपर और बात करेंगे. हाँ. So yeah. So this is GMM Podler. Now the same chart is of Garware High Tech. ठीक है. Same, you have got an entry, then you have got a pyramid. एंट्री कहाँ? यहाँ पे ये जो एंकर कॉलम है ना. हाँ. That's it. That is my first entry. तो अभी 5 का एंट्री हुआ है वहाँ पे. जो अभी ये रिसेंट AFT हुआ है. Correct. अभी मैं I'll wait for pyramiding. Otherwise it will take me out in DBS. अब इसमें आपने कुछ टर्टल ब्रेकआउट या ऐसे ये अभी लगाया है just to check कि क्या है. मैं यूज नहीं करता हूँ. सिर्फ AFT पे एंट्री करते. Yes. Because I want that momentum in my stock. AFT is like a box breakout. ठीक है. तो आपने ये मूविंग एवरेजेस, टर्टल, ये मेरे गाइडेंस के लिए है. चार्ट एनालिसिस. बाकी एंट्री सिर्फ AFT पे. एंट्री सिर्फ AFT पे. ठीक है. ठीक है. एंड रीजन बिहाइंड दैट इज एज वी स्पोक द एनालॉजी कि मुझको अच्छा फॉर्म वाला ही बंदा चाहिए. अदरवाइज के बॉक्स ब्रेकआउट पे भी डेफिनेटली यू कैन मेक इट वर्क. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट मुझको बॉक्स ब्रेकआउट है और मोमेंटम है, तो मुझको मोमेंटम ज्यादा चाहिए. ओके. दैट इज द की. Both are bullish patterns, both are major bullish patterns as per the definition, but this is just my preference because I like the logic behind following through a anchor column. Because strong counter में enter हो, अगर strong counter ही नहीं चल रहा है तो turtle भी चलने की probability बहुत कम है. बहुत कम है. Because मैं 50 strong stocks ले रहा हूँ और उस पे मैं anchor column ढूंढ रहा हूँ, तो मैं further strong stocks ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे. Same setup can be used in ETF as well as mutual funds. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. म्यूचुअल फंड में बस मैं एक चेंज करता हूँ कि ये आप देखोगे कि AFT पे एंट्री है, पिरामिडिंग है. यहाँ पे मैं DBS में अभी तब एंट्री करता था, मैं MF पे अभी MA के नीचे DBS लेता हूँ एग्जिट के लिए. हाँ. That's the only change I have done. The reason behind that is by definition I want to keep MF longer term. It's a tax efficient product. हाँ. So ये ETF है, right? ETF है. So it's a US market. US market. So अगर आप सेम ये यहाँ पे देखोगे, this is N100 right now, giving the same setups. So there is no reason for me to change my strategy if it is working well. I will only try to optimize it based on the feedback that I get from my system. तो सेटअप वही है, फॉलो थ्रू भी वही है, पिरामिडिंग भी वही है. ये आप देखोगे, दिस इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप. अच्छा. पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इफ यू सी एंट्री वाज हियर एंड देन आई एम राइडिंग इट बिकॉज MA ब्रीच ही नहीं हुआ है.
तो जब तक मूविंग कौन सा 10 कॉलम मूविंग 10 कॉलम मूविंग है, उसके नीचे डबल बॉटम सेल आया तो मैं बाहर तो आप जाऊंगा। एग्जिट करो। और Correct. म्यूचुअल फंड पे बॉक्स वैल्यू क्या है? ये तो 0.25 है, लेकिन आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ये 1% पे भी कर सकते वहाँ हो। भी कर सकते हो। सेम AFT सेटअप, तो आप 0.25% या 1% आपका AFT सेटअप एंड So Parag Parikh have kept 0.25 because it's a flexi cap fund. It has made small everything as well as some international exposure. So 0.25. अच्छा, The reason behind 0.25 is this. अगर यही कोई स्मॉल कैप मिड कैप फंड होता तो मैं you could do it 1% पे 1% पे करेक्ट। और उस पे आप AFT पैटर्न AFT पैटर्न पिरामिडिंग तो करता ही हूँ। DBS is below MA. That is the only change that I have done now. Because I want to give more breathing space for that MF to run. Because it's a MF. राइट, It's not individual stock. So it's a set of stocks. या सो म्यूचुअल फंड में भी आप ये Yes, चीज एक्टिवली I do that. और रफली आपका एग्जिट्स कितना फ्रीक्वेंट आता है इसमें? PPFAS में तो एग्जिट आया ही नहीं है, हाँ, बट in general? टिपिकली वंस अ क्वार्टर भी नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा। MF पे जो हमने अभी स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं किया है, व्हाट आई टिपिकली डू इज बेस्ड ऑन RS, मैं MF के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज करता हूँ। अच्छा, सपोज MF पे मेरे 100 रुपए लगे हुए हैं, अगर उसमें 30 समझो हाइब्रिड में है, 30 मेरे इक्विटी में है और जो बचे हुए 40 है वो डेट में है, समझो। तो मैं RS पे देखता हूँ कि निफ्टी एंड GS कंपोजिट, ये इसका RS लगाता हूँ मैं। अगर RS में GS कंपोजिट आउट परफॉर्म कर रहा है तो मैं इक्विटी का पोर्शन डेट में मूव करता हूँ। अच्छा, दैट्स द ओनली स्विच आई डू एंड दो स्विचेस कैन हैपन ओनली वंस इन 3 to 4 months। अच्छा, वो पूरा स्विच नहीं करूंगा, मैं पार्शियल करूंगा, मेरा एलोकेशन चेंज हो जाएगा, तो मेरा इक्विटी एलोकेशन कम हो जाएगा। तो अगर मार्केट टूटा तो मेरा एब्सोल्यूट लॉस कम हो जाएगा और वो RS दिखा रहा है मुझको। सेम लॉजिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया। शायद हमें एक और सेशन करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के ऊपर, बिकॉज इसमें बहुत डिस्कशन करने के बाद आई थिंक अदरवाइज बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। दिस वाज इंटरेस्टिंग। तो आप यही सेटअप म्यूचुअल फंड में भी करते हो एंड ETFs में भी करते हो और आपके कैश में करते हो, मिड कैप में 1% बॉक्स वाइज, लार्ज में 0.25%। करेक्ट। This what I'm trying to do in the US market for the same setup. Now this is the Tesla stock. So your first entry was here? First entry was here. ये एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू। अच्छा, और ये सेकंड एंट्री। गॉट इट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपका पिरामिड। सो आई एम वेटिंग फॉर द सो मेरा 2 ट्रांचेस गया है, तीसरा ट्रांचेस की मैं वेट कर रहा हूँ या एग्जिट की वेट कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बॉक्स वैल्यू लगा है टेस्ला के लिए। दिस इज 0.25। लार्ज कैप है। ये आप 1% पे भी इक्वली कर सकते हो। सी 0.25 एंड 1% देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस एक्सेप्ट द टाइम फ्रेम। अगर आपको कम ट्रेड्स चाहिए, आपको ज्यादा फ्रीक्वेंस इन आउट नहीं चाहिए, तो आप 1% पे चले जाओ। मुझको एक्टिवली ये मैनेज करना, इसलिए मैं 0.25 पे कर रहा हूँ। अगर ये स्मॉल कैप स्टॉक होता तो मैं 1% पे जाता। करेक्ट। सो सेम थिंग ये सेटअप है। ये दिस इज TQQQ, अच्छा, विच इज द लेवरेज ETF इन US। ओके, सो सेम सेटअप। यहाँ पे जो एंकर कॉलम है, यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है फॉलो थ्रू में, एंड नाउ आई एम, यहाँ पे मेरा पिरामिडिंग भी हुआ है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय एग्जिट और माय थर्ड पिरामिडिंग। सेम, एंड दिस इज अ लेवरेज प्रोडक्ट, सो इट्स 3x। सो अगर QQQ है, QQQ 1% से बढ़ रहा है तो ये 3% से बढ़ेगा। अच्छा, क्या इंस्ट्रूमेंट है ये? TQQQ। अच्छा, which is the QQQ is the Nasdaq. Okay. So इसका TQQQ मतलब 3x leverage. So इसका चचेरा भाई भी है जो SQQQ है, where you can short. अच्छा, या जो इंडिया में हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे TQQ है और SQQQ है। आप देखो और करो, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, both is possible with ETF with leverage. तो यहाँ पे भी आप US मार्केट के स्टॉक्स को स्कैन करते हो to find that ETF? I do. सो ये कैश वाला सिस्टम तो पूरा समझ में आया है एंड इसको हम थोड़ा सा बाद में वापस इसका समरी डिस्कस कर लेंगे। एक बार कमोडिटीज वाला आप दूसरा सिस्टम डिस्कस करना चाहते हो? लेट्स डू इट। ठीक है। सो कमोडिटीज वाला जो सिस्टम है वो एकदम सिंपल है। इट्स वैनिला ट्रेंड फॉलोइंग। अच्छा, सो यू नो व्हाट ट्रेंड फॉलोइंग इज। सो बट फॉर पीपल हु डोंट नो, कि आप चार्ट देख रहे हो, आप एक कोई तो चीज लगा रहे हो कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है मेरा, कि यहाँ पे मुझको ये इंस्ट्रूमेंट बुलिश लग रहा है, तब आप वो लॉन्ग हो जाओगे। और जब तक आपको अपोजिट सिग्नल नहीं मिलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट बेरिश हो गया है, आप उसमें बने रहोगे लॉन्ग पोजीशन में। जब बेरिश सिग्नल मिलेगा
तो आप उस पर शॉर्ट लोगे और फिर लॉन्ग तक वेट करोगे. दैट इज अ टिपिकल वेनिला ट्रेंड फॉलोइंग विच इज अ SAR system, so stop and reverse. I have made some changes into it. Okay. Where I'm not in the system all the time. Okay. But I'm still looking for trend identification. वो trend identification मिलने के बाद अगर वो short है तो मैं short लूंगा, long है तो long लूंगा. Then I will exit on the reversal. अच्छा. And wait for the trend change or trend continuation. Okay. That is the only change I have done. See, ट्रेंड फॉलोइंग का फंडा ये है कि आप एक कमोडिटी में नहीं कर सकते. क्योंकि वो कमोडिटी अगर ट्रेंड में नहीं है तो आपको विपसॉज मिलेंगे. सो आपको ये सेट ऑफ एसेट क्लासेस पे करना पड़ेगा. तो मैं ये करता हूँ कि ये गोल्ड पे करता हूँ, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड क्रूड. सो 4 इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं ये रन करता हूँ. द सेम सिस्टम कैन बी रन वेरी वेल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल. अच्छा. लेकिन अभी मैं वो करता नहीं हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी मेरा डायरेक्शनल FNO सिस्टम में कवर हो जाता है इसलिए. बट अगर कोई चाहे तो ये सिस्टम बैंक निफ्टी और निफ्टी पे भी बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा. अच्छा. उस पे थोड़े नुआंसेस है कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. बट आइडिया इज ट्रेंड फॉलोइंग में इतना ज्यादा मटेरियल है कि मैं ज्यादा तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं. राइट. Whoever wants, Michael Covell is the guy. Correct. He has written so much about trend following. He has interviewed lot of trend followers, how they do it. So I will just tell you my version of what I do. Right. And then we will talk about the details. ठीक है. So मैं as I spoke, asset classes में करता हूँ gold, silver, natural gas and crude. Now here I don't use PNF. ठीक है. I use Renko. Now a lot of people have asked me why Renko. What I have found in my experience, especially if you are doing a trend following, where you're not looking at patterns, you're not looking at anything else, you're looking at just the identification of the trend, then Renko offers you a very, very simple identification. So that is why Renko. And what is my identification? मेरा जो है Donchian channel. अच्छा. So whenever Donchian channels gives me a new entry, either on the long or short, I will take that. And uska, what I have observed, especially with commodities, is that they work so well compared to the equity market for trend following. Because quarterly earnings नहीं है, company announcements नहीं है, कुछ नहीं है. Gold trade करना है, US market में gold trend negative है तो यहाँ पे negative होगा. खत्म. तो इतना अच्छा चलता है वो ट्रेंड फॉलोइंग पे. एंड इट गिव्स यू सस्टेन्ड ट्रेंड्स. ऐसा नहीं कि आप बीच में काटेगा वो आपको. वो पूरा चलता जाएगा. जहां पे आप एग्जिट करोगे बहुत सही चलता है वो. अच्छा. लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग. अच्छा. क्योंकि कमोडिटीज का टाइमिंग तो मिडनाइट तक चलेगा. तो हर एक बंदा ये कर नहीं सकता है. तो प्रीवियसली आई यूज्ड टू डू दिस ऑन कैंडलस्टिक्स. लेकिन व्हेन आई learned Renko and then I tried to model my system. Renko with DC was a very simple system. As I told you earlier कि PNF और Renko का एक एडवांटेज ऐसा है कि आप नए बंदे को जो सिखा रहे हो वो काफी अच्छी तरह सीख जाएगा बिकॉज इट्स सिंपल टू लर्न. अगर आपके पास पुराना बैगेज नहीं है तो मैंने मेरी तरफ से मेरे डीलर को ये सिखाया. अच्छा. कि रेनको क्या है, डीसी आइडेंटिफिकेशन कैसा है, रूल्स कैसे है सिस्टम के. मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है ये प्लान. मैं उसको देता हूँ, वो बस एग्जीक्यूट करता है मेरे लिए. अच्छा. तो मुझको टर्मिनल के ऊपर होने की जरूरत नहीं है रात को. एंड यू आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस बिकॉज सी फंडा क्लियर है कि आप जो लॉजिक है आपका, जहां पे एंट्री है, जहां पे एग्जिट है, वो आप सिस्टम डिजाइन करते वक्त लगा रहे हो. Not at the time of taking entry. Taking entry and taking exits is a very manual job based on the system. तो जो मेरा लॉजिक लगाना है वो मैंने रूल्स में लगा दिया है कि कितना लेना है, पोजीशन साइजिंग कैसे रहेगा, कब तक होल्ड करने का, कब तक, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है. तो मैं वो उसको बस दे देता हूँ, वो कर लेता है. सी दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन. जितना आपका सिस्टम सिंपल है ना, उतना वो एग्जीक्यूशन के लिए ईजी है. जितने आपके डिसीजन पॉइंट्स होंगे एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ट्रेड, उतना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा. नहीं, ये बिल्कुल सही है.
क्योंकि सिंप्लिसिटी आई बिलीव इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अगर आपका सिस्टम सिंपल है तो आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर आपका सिस्टम में 3 4 5 डिसीजन वेरिएबल है एट द टाइम ऑफ, आप ये भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, देन एवरी डिसीजन पॉइंट कैन गिव यू कंफ्यूजन कि अरे करना है नहीं करना है। बिल्कुल सही। ऑल्दो सिंपल इज अ रिलेटिव टर्म, Yes. तो वो थोड़ा सा डिफर करता है। हाँ. बढ़िया। अब यहाँ पे आप जो आपका सिस्टम है रेंको डीसी मतलब डॉन्चिन चैनल, यस। तो आप कितने ब्रिक का यूज करते हो वो? सो इट्स 0.1 नहीं, तो ये ब्रिक साइज हो गया आपका? ब्रिक साइज 0.1 और डॉन्चन का पीरियड? एंड डॉन्चन आई यूज डिफॉल्ट डीस्मार्ट 40 डीस्मार्ट। अच्छा। लेकिन डॉन्चन चैनल इज नॉट विजिबली वेरी गुड Yeah. ऑन द चार्ट। ठीक है। द पर्सन कैन गेट कंफ्यूज्ड, हाँ। तो मैं डीस्मार्ट यूज करता हाँ, तो हूँ। उसमें और जो डीस्मार्ट पे जो arrow है, एरो है हाँ। वो डॉन्चन चैनल है। राइट। सो यू डोंट इवन नीड टू नो डॉन्चन चैनल, अच्छा, यू कैन अच्छा, जस्ट अच्छा। गेट इनटू कि ब्लू एरो किधर आ रहा है, हाँ। दैट इज माय एंट्री पॉइंट। सो अच्छा। वो समझाने के लिए काफी इजी होता है ना मुझको, कि अगर मैं किसी दूसरे बंदे को समझा रहा हूँ कि ये सिस्टम कैसे ट्रेड करना है, ब्लू एरो आया एंट्री ले लो, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो आप ब्रिक साइज 0.10% लेते हो, 1 0.1 मिनट टाइम yes फ्रेम? correct। this chart is yesterday's chart, अच्छा, gold, ठीक this है। is not a live chart। ठीक है। so यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे पहले ब्लू ब्रिक मिला, हाँ, ब्लू ब्रिक पे मेरा एंट्री हुआ, ठीक है। वहां पे मेरा एग्जिट किधर है, ऊपर यहाँ पे इमेज क्रॉस ओवर जहाँ पे हो रहा है। तो एग्जिट आप कैसे कर रहे हो? मूविंग एवरेज? सो यहाँ पे बस एंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलो। अभी यहाँ पे जिधर मुझको मल्टी ब्रिक ब्रेकआउट मिलेगा, मैं वो एग्जिट कर रहा हूँ। अच्छा, मल्टी ब्रिक ब्रेक। हाँ, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जिट हुआ ट्रेड, ये जो है, हाँ। ये यहाँ पे वो एग्जिट हुआ ट्रेड। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मुझको वो ये जो हायर हाई बनाया ना उसने, हाँ। तब मैं वो ट्रेंड छोड़ रहा हूँ। तो पहले ब्रिक के ऊपर, हाँ। अगर पहले एक भी ब्रिक है तो उसके ऊपर गया तो स्विंग ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं, वो आप कह एग्जैक्टली सकते दैट इज अ करेक्ट वे टू डू इट। हाँ। लेकिन इट्स द सेम थिंग, मैं जब उसको समझा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हाई है, उसके हाई के ऊपर ब्रिक गया तो आप छोड़ दो। ठीक, गॉट इट, राइट। गॉट। सो यहाँ पे 2 ट्रेड मिले उसको, ये वर्क हुआ, ये कुछ अच्छा वर्क नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर से डॉन्चन चैनल ब्रेक आया, राइट, लेकिन वो यहाँ पे एग्जिट हुआ। ठीक है। तो ये जो बेरिश एरो आया, वो डॉन्चन चैनल का ब्रेकआउट है, वहां आपने शॉर्ट किया इसको। करेक्ट। फिर जो स्विंग ब्रेकआउट आया वहां पे आपने कवर कर लिया। फिर से शॉर्ट आया तो फिर से आपने ले लिया और फिर से कवर किया। इसमें कोई मूविंग एवरेज फिल्ट्रेशन या सब कुछ? व्हाइल सी डॉन्चन चैनल बाय डेफिनेशन वो आएगा ही नहीं, डीस्मार्ट है तो उसके नीचे ही आता है। करेक्ट। सो दैट व्हेन आई टोल्ड यू कि इतना इजी सिस्टम है कि मुझको किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू एरो आया आप ले लो, जब ब्रिक का हायर हाई आएगा तो आप छोड़ दो। अच्छा, सिंपल। बुलिश बेरिश जो दोनों साइड दोनों साइड। सो यहाँ पे बुलिश ट्रेड है। हाँ, यहाँ पे आया, ये एमए क्रॉसओवर था, यहाँ पे बुलिश ट्रेड आ गया, दैट हैज गिवन रियली गुड रिटर्न्स। करेक्ट। सी कमोडिटी का फंडा ये है कि इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम टू एग्जीक्यूट, बट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई। कि गोल्ड के लिए आपको 7-8 लाख का मार्जिन लगेगा, सिल्वर के लिए 5-6 लाख का लगेगा। तो अगर आपका कैपिटल वो अलाउ करता है तो ही आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप मिनी पे भी कर सकते हो। अगर हो सके तो हाँ, सिल्वर मिनी उधर आप कर सकते हो। मैं तो पूरे लॉट पे करता हूँ, बट आप मिनी पे भी कर सकते हो। सेम सेटअप विल डेफिनेटली वर्क, क्योंकि आप मिनी का चार्ट लगाओगे वो आइडेंटिकल दिखेगा जो है अभी। करेक्ट। सो इसमें जो समझ आया मुझे कि सिंपल आप एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल यूज कर रहे हो, रेंको चार्ट उसके लिए यूज कर रहे हो। रेंको का डायगोनल प्रॉपर्टी है जिसका एडवांटेज मिलता है ट्रेलिंग के लिए। करेक्ट। सो वो आप लिवरेज कर रहे हो। आपका जो एंट्री है आप डी स्मार्ट लगाते हो, और उसके साथ डीसी वो एरो आता है, वो डीसी मतलब डॉन्चन चैनल है। अब डी स्मार्ट के साथ टिपिकली वो डॉन्चन चैनल के पैटर्न्स को फिल्टर करता है, मतलब अप ट्रेंड में बुलिश ब्रेकआउट आता है, डाउन ट्रेंड में बेरिश ब्रेकआउट आता है, तो ट्रेंड फिल्ट्रेशन भी हो गया। और ये जो ब्रेकआउट है डॉन्चन का, मतलब 40 ब्रिक का हाई जब वो क्रॉस करता है तो वो एक ब्रेकआउट है, जो वो एरो आ रहा है। तो वो एरो आया तो आपने वो बाय किया, मतलब ब्रेकआउट ट्रेंड फॉलोइंग हो गया रेंको चार्ट पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम इज अ डायनेमिक टाइम फ्रेम, वो एक और एडवांटेज होता है नॉइजलेस चार्ट का। करेक्ट। कि जिसमें आप दीज एडवांटेजेस बहुत सारे इनहेरेंट है। हाँ, राइट। मुझको कुछ करना ही नहीं है, मुझको बस आइडेंटिफिकेशन करना है, और एग्जीक्यूट करना है, बस वो भी आपने किसी को दे दिया। ठीक है। तो वो आपने वहां फर्स्ट एरो पे आप ले रहे हो और उसमें बेरी स्विंग ब्रेकआउट पे आप एग्जिट कर रहे हो।
करेक्ट दैट्स इट। करेक्ट और सेम वे सेम फॉर शॉर्टिंग। इसमें पिरामिडिंग वगैरह नहीं, इसमें पिरामिडिंग नहीं है बिकॉज टिपिकली यू गेट स्टॉप्ड आउट। ठीक है, तो लेकिन री एंट्री इज वेरी इजी अगेन। ठीक है। जब डंचन चैनल मिलेगा तो आप री एंट्री करोगे। तो अगर आप 4 इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड कर रहे हो, हाँ। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक महीने में टिपिकली कितने ट्रेड आते हैं गोल्ड में, सिल्वर में? Typically gold, if I take an example, I will say about 2 to 3 days हाँ, is one trade, One either a trade. long or a हाँ, short. ये आपका इंट्राडे ऐसा ये है नहीं, इंट्रा सिस्टम है। मतलब So that is where your asset allocation comes into picture. Right. क्योंकि गोल्ड ऐसा या क्रूड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप ओवरनाइट झटका लग सकता है। करेक्ट। So you should be in a position to digest that. That is why the capital allocation for that particular system is only 20% of my capital. राइट, वंडरफुल। सो ये आप टिपिकली गोल्ड या इसमें 2-3 डेज का एक ट्रेंड ऑन एन एवरेज होता है, मिल सकता है, yes. नाइस। So if you see this trade, Yeah. यहाँ पे मिला है ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन और यहाँ पे वो टूटा है। हाँ, मतलब 3 to 4 डेज का एक ट्रेड Correct. हो सकता है। और this was the one day before that. ये वाला तो 2 दिन चला था, लेकिन एग्जिट हुआ। और सेम ब्रेक साइज और ये क्रूड और नेचुरल Everything गैस same में break size. Break size is नेचुरल same. गैस और क्रूड काफी अच्छे से मूव बहुत अच्छे मूव होते हैं इस पे। इनफैक्ट मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च भी किया था कि इस पे ऑप्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, लेकिन स्प्रेड बहुत अच्छे नहीं है इसमें। अच्छा, तो द स्लिपेज कैन बी वेरी हाई और एग्जीक्यूशन जब आप एग्जिट करोगे तब आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी नहीं, तो वो प्रॉफिट उठा लेगा। तो इसलिए फ्यूचर इज बेस्ट because typically if you see these CTAs in the US, they typically run this trend following on multitudes of assets. They will run on crude, they will run on gold, silver, precious metals, coppers, soya, everything. So that is the challenge of ट्रेड पॉइंट। आप एक कमोडिटी पे वो करोगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देगा आपको, क्योंकि ऐसा बहुत सारा टाइम आ सकता है कि जहाँ पे वो कमोडिटी ट्रेंडिंग ही नहीं है। करेक्ट, either short or long. Right. That is why you have to run it on a basket of instruments. Yeah, basket of instruments. Yeah. तो ये सेटअप वंडरफुल था। अब जो मैं अगर आप एक्चुअली शायद कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया या जो मैं और भी समझाऊं, आपके जो बुक में आपने 40% में जो एक कैश का पूरा सिस्टम समझाया, अल्टीमेटली ये जो दोनों सिस्टम में जो नेचर है वो एक मोमेंटम ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग का है ना, दोनों ही सेटअप में। अब कैश का जो मोमेंटम ट्रेडिंग का डिफिकल्ट पीरियड आएगा जब मार्केट बेरिश होगा या बिल्कुल एकदम साइडवेज नैरो टाइप मार्केट हो। आप इसमें भी मोमेंटम कर रहे हो, लेकिन ये दोनों असेट क्लासेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो दे आर अ नेचुरल हेज, स्पेशली द गोल्ड, एंड दैट आई हैव फाउंड बाय एक्सीडेंट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट कि निफ्टी अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो गोल्ड अच्छा करने का बहुत ज्यादा चांस है। तो मैं गोल्ड का लॉन्ग तब छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे नेचुरल हेज देगा मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो पे। राइट। और जब बेरिश मार्केट हो तो आपका कौन सा सिस्टम होता है जो आपको जो बेरिश मार्केट हो तो जो मेरा इंट्राडे सिस्टम है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों है ना एफएनओ का, सो दैट विल डेफिनेटली गिव मी गुड ब्रेक्स। और जब कंसोलिडेशन होगा तो वो मुझको जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी है दैट विल कीप ऑन पेइंग मी, सो दैट इज द आयरन कॉन्डोर व्हिच आई रन। सो पुट स्प्रेड एंड कॉल स्प्रेड बोथ डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ द मार्केट। आपकी कैश वाले सिस्टम में मान लो कभी ऐसा हो कि आप इंडेक्स निफ्टी मान लो परफॉर्म नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ, तो ऐसा है कि आप एग्जिट करते हो स्टॉक्स कि नहीं, आप अपना जब तक डबल बॉटम सेल नहीं आएगा? टिपिकली इट हैज नेवर हैपेंड लाइक दैट। अच्छा, इज इट? क्योंकि बाय डेफिनेशन आई एम लुकिंग एट डिसेंट कंपनीज, आई एम लुकिंग एट strong RS companies, and then I'm looking at price momentum in companies. अगर वो companies ही नहीं चल रहे हैं तो मुझको वो ऑटोमेटिकली थ्रो आउट कर देगा, मुझको इंडेक्स का देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप कोई इंडेक्स एनालिसिस फिर इसलिए करते नहीं हो? तो because in RS when I do RS I don't do RS with Nifty 50, I do RS with NS 400, which is the mid small universe. That is where most of my delivery picks will be. तो जो फ्यूजन मैट्रिक्स आप चलाते हो वो NS 400 पे चलेगा, उस पे 400 स्टॉक्स जो मिड कैप और स्मॉल कैप का ग्रुप है। करेक्ट। और उस पे से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर लार्ज कैप भी है मेरे पोर्टफोलियो में तो वो मिड स्मॉल यूनिवर्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी वो मेरे पोर्टफोलियो में आया है, लाइक कोफोर्ज जो अभी देखा हमने।
एक्चुअली आपने ये बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज पूरा शेयर किया है। आपने जो एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, ये बहुत ही प्रैक्टिकल Yes. नॉलेज है। कोई करना चाहे इसमें से काफ़ी टेक अवेज हो सकते हैं। मुझे आप एक बताइए, बिकॉज यू आर ऑल्सो फुल टाइम ट्रेडर, ये आपका पूरा ब्रेड बटर है, बिजनेस Yes. है। इसमें टिपिकली आपके ट्रेड्स में व्हेन देयर इज अ रफ पैच, एक तो हो गया कि सिस्टम कॉम्प्लीमेंट कर Yes. सकता है, बट कभी कभी ये भी होता होगा Yes. कि सारे सिस्टम्स में ही ऊपर नीचे है, हो तो सकता है, यू आर हो नॉट सकता है। मेकिंग Yes, मनी या yes, सिस्टम्स हो रफ सकता पैच है। से जा रहे। ऐसे पैचेस को आप कैसे हैंडल करते हो? So that is where your mindset comes in. So that is what it took me time to get terms to the fact that these returns are not going to be consistent. So my returns are going to be in patches. 2-3 महीने मुझको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, 2-3 महीने मुझको कुछ नहीं मिलेगा. So that is part and parcel of the game. If you are mentally okay with this fact, then only you should do this. और आपने अपना फाइनेंशियल भी उस तरह से आप मैनेज करते हो, सेटअप किया हुआ है, किया हुआ है। करेक्ट. ये एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। और तालिब का एक कोट है, दैट salary is one of the biggest addictions people can have. That is why you get used to consistent money. Consistent money can always happen in salary, but big returns will never happen. That is why you need lumpy returns. So in lump what happens is 2 या 3 महीने के जो रिटर्न्स है वो आएंगे यहाँ पे, 2-3 महीने नहीं आएंगे, लेकिन आपका एवरेज तो अच्छा ही रहेगा. एंड दैट इज वेयर योर डिसिप्लिन कम्स इन, कि जब आपका मार्केट अच्छा नहीं है तो दैट इज वेयर द सिचुएशनल अवेयरनेस कम्स इन, कि अगर आपका मार्केट ही अच्छा नहीं है, आपको सेटअप ही नहीं मिल रहे, आप टर्मिनल के ऊपर हो फिर भी आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपका सेटअप नहीं है, ट्रिगर हो रहा है. दैट इज द होल पॉइंट, टू लर्न रादर देन लर्निंग एंट्रीज एंड एग्जिट्स. वो तो आपको मिल जाएंगे. एक्चुअली ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, या ये एक्सेप्टेंस भी है, ये आता कब है? एक तरह से वेंचर है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि आप एवरी मंथ या एवरी डे आप यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, लेकिन वो आपके सिस्टम जब इन प्लेस हो जाते हैं, करेक्ट, उसके बाद का ये होता है बहुत बार. Absolutely true, because you have to treat this as a business, not as a hobby, not as a entertainment, not as something because अरे टाइम है तो आप 4 ट्रेड कर लो. See, ये मेंटालिटी हुआ है क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली इजी टू एंटर. आपको बहुत सारे डिवाइसेस है जहां से आप बस ट्रेड डाल सकते हो, किसी दोस्त ने बोल दिया ले लो, आपने ले लिया. बट आर यू डूइंग दिस विद एज अ business motive, or you're doing this as a time pass, or as a entertainment value, or a excitement value, or the bragging value in a party कि मैंने ये 20 में ले लिया, ये 20 का 200 हो गया, fair enough. बट आपके पोर्टफोलियो पे कितना फर्क पड़ा है उस पर? एसेट एलोकेशन, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग आर द की, because you want that 20 to 200 to have a material impact on your portfolio. Otherwise bragging rights के लिए अच्छा है कि 20 का 200 हो गया, लेकिन आपका एलोकेशन कितना था उस पे आपके पोर्टफोलियो का, दैट इज व्हाट मैटर्स. और उसके लिए ये सारे इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है. यही फर्क है एनालिसिस में और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में. मतलब कहीं स्टॉक को एनालाइज करके बोलना ये चल गया, ये नहीं चला मेरा, वो स्टॉक्स डिस्कस करना वो एक पूरा अलग एक स्टोरी है. आइडियली ट्रेडिंग इज अबाउट आपका पोर्टफोलियो कैसे बिहेव कर रहा है, आप एलोकेशन कैसे कर रहे हो. एंड योर पोर्टफोलियो शुड बी द बिगेस्ट फीडबैक that you are getting from the market. You don't even need to look into anything else. आपका पोर्टफोलियो के एंट्रीज कैसे है, एग्जिट्स कैसे है, एग्जिस्टिंग पोजीशन कैसे जा रहा है, should give you a lot of indication and insight about how the market is behaving. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे पूछना जरूर बनता है, बिकॉज आप 5-7 साल से एक सेटअप ट्रेड कर रहे हो, वो सेटअप्स अपने डिफिकल्ट पीरियड से गया होगा बहुत बार, मतलब कहीं आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आया एंड ऑल ऑफ दैट. वैसे टाइम पे क्यों दिमाग में नहीं आया कि मैं सेटअप चेंज करूं एक, और आता भी होगा बिकॉज यू कीप कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ आइडियाज. तो उस टाइम पे आप कैसे ये करते हो कि नहीं मैं सेटअप्स पे ट्वीक नहीं करूंगा, आई विल स्टिक टू द सेम थिंग? ये कहां से? I'll tell you one thing. See, you design a system by defining what you are looking in that system. That's how you make the setup. सेटअप्स तो हजारों है, लेकिन आपको कौन सा सेटअप यूज करना है, उस सेटअप्स के प्रोस क्या है, उस सेटअप के कॉन्स क्या है, उस सेटअप का एज क्या है. यू हैव टू फाइंड दैट आउट बाय स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन इट. कैसे ये सेटअप बनता है,
पास्ट में कैसे हुआ है, एंड दैट विल गिव यू द विजिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग दैट सेटअप इन द फ्यूचर इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन. अगर आपने ये नहीं किया है तो वो कन्विक्शन नहीं बिल्ड होगा कभी भी. So I very well know what is my edge in this setup, and that is why I am trading it. And that edge is extremely important because see, since we are on the topic of edge, now lot of people do equate stock market with gambling, right? सट्टा है, आप डाल दो. सट्टा भी आप खेल रहे हो या आप कैसीनो में जा रहे हो. कैसीनो में आपको पता है क्या कि जो गेम आप खेल रहे हो उसका एज क्या है. आप एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो, बट देयर आर प्रोफेशनल गैम्बलर्स एज वेल. दे वेरी वेल नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. जब आप रूले खेल रहे हो तो आपका एज कितना है. आप अगर यूरोपियन खेल रहे हो या अमेरिकन खेल रहे हो उसका एज डिफिकल्ट है, दैट यू शुड नो एंड देन ओनली यू शुड सिलेक्ट द सेटअप. जो प्रोफेशनल गैम्बलर्स है वो कभी स्लॉट मशीन या रूले में नहीं रहते, वो पोकर में जाते हैं. उसका पोकर में जाते हैं या ब्लैक जैक में जाते हैं. उसका एडवांटेज ये है कि उनको पता है कि उधर हाउस का एज सबसे कम है. ये सेटअप में रूले हो क्रैप्स हो, हाउस का जो एज है वो सबसे ज्यादा है. यू जस्ट कैन नॉट विन, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी द कैसीनो, इट इज द वे इट इज ऑर्गेनाइज्ड दैट द फर्स्ट पैरामीटर्स यू गेट इज slot machines, roulettes and craps where the house has the biggest edge. And then comes the later part where poker comes into picture, blackjack comes into picture, where your skill is involved and the house has less edge because you have to beat the house at the end of the day. In this case, the house is market. So you have to figure out whether that particular setup is giving you an edge or not. Nobody else can tell you. People can give you setup, but एज कैन बी मल्टीफोल्ड. आपको लेवरेज लेके एज ले सकते हो, आप टेक्नोलॉजी लेके एज ले सकते हो, या आप रिस्क रिवॉर्ड लेके रख सकते हो, कुछ भी. लेकिन वो आपको फिगर आउट करना है कि ये सेटअप से मुझको एज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. एंड दैट जर्नी नोबडी एल्स कैन गिव यू. पीपल कैन गिव यू सेटअप दैट इज रेडीली अवेलेबल, बट यू विल हैव टू फिगर आउट कि आपका एज क्या है उसमें. सो जब आपको ये रियलाइज होता है कि आपका एज है, देन द कन्विक्शन इज देयर. एब्सोल्युटली. वेरी इंटरेस्टिंग. और आपने आपके ऐसे सिस्टम्स जहां आपका कन्विक्शन है, एज है, आपने शेयर किए ओपन हार्टेडली पूरे अच्छे से. that is the reason. See, entry and exits are not important. People will give you readily available systems, but the point is you have to make it your own by building the conviction, finding your edge, and then implementing it. So there is no trade secret as such to which I do, because the trade secret is my edge, which I have found. So whoever is using this setup has to make that effort to find that out. He cannot borrow my edge. Absolutely. He can borrow my entry and exits. बिल्कुल सही चीज है. Absolutely. So that is why I am open about what I do, because I know that a lot of people will use it, but the point is you have to make it your own by finding your own edge. कि मेरा एज मुझको पता है कि मेरा एज है रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं कभी भी नहीं भूलने वाला. सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि एएफटी आप इंट्रा पे भी करो, लेवरेज लेके करो, दैट कैन बी योर एज. कि आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली लेवरेज मिला है आपको, तो दैट इज अप टू यू. सेटअप स्टेज द सेम. यही हमारे पॉडकास्ट का टाइटल भी है, फाइंडिंग एन एज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर सेटअप्स, आपका जर्नी एक्सपीरियंस. बहुत सारे इसमें से टेक अवेज हैं, एंड आई एम श्योर के पीपल विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल, इंफॉर्मेटिव. और इसके ऊपर मुझे लगता है और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. मेरे पास और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मुझे लगता है एक और पॉडकास्ट होना चाहिए. तो किसी और टाइम वी विल आल्सो डू इट. Thank you very much. You're welcome. Yeah. Thank you. All right. Thank you.